ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف بھی اٹھا لیا ہے اور امریکی صدر کے عہدے کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی ہیں۔ ان کے خاندان کے قریبی بزنس پارٹنرز کی قیادت میں امریکی سرمایہ کاروں کا ایک وفد بھی پاکستان آیا ہوا ہے، مگر وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات میں یا صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں وہ باتیں ہرگز نہیں ہو رہی ہیں جن کی تحریک انصاف کو امید تھی۔ جی ہاں، تحریک انصاف کی توقعات کے برعکس امریکی سرمایہ کاروں کے وفد نے وزیر اعظم سے ملاقات میں پاکستان کی تعریف کی اور پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا۔ وفد کے سربراہ جینیٹری بیچ نے پاکستان کی بے پناہ اقتصادی صلاحیت کی تعریف کرتے ہوئے حکومت کی سرمایہ کار دوست پالیسیز کو خوب سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں مصنوعی ذہانت، معدنیات، توانائی اور ریل اسٹیٹ میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی تعمیراتی ٹیکنالوجی پاکستان لانا چاہتے ہیں جس سے ایک ماہ میں 30 منزلہ عمارت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے۔ جینیٹری بیچ نے اعتراف کیا کہ ماضی میں امریکی عوام کو پاکستان کی حقیقی تصویر نہیں دکھائی گئی۔ بائیڈن انتظامیہ نے 4 سال جو کچھ کیا وہ بالکل مناسب نہیں تھا۔ موجودہ امریکی قیادت پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان کی موجودہ قیادت نئی امریکی قیادت کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ اپنی ساری گفتگو کے دوران انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی۔ ایک صحافی کے سوال کرنے پر انہوں نے ٹکا سا جواب دیا کہ وہ یہاں بانی پی ٹی آئی سے متعلق بات کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ رچرڈ گرنیل سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ وہ رچرڈ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ ایک زبردست امریکن ہے جنہوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ رچرڈ گرنیل نے انہیں بتایا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق انہیں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے گمراہ کیا گیا۔ انہیں جو پریزنٹیشنز دی گئی وہ ڈیپ فیک ویڈیوز تھیں۔ سچائی جاننے کے بعد ان کی اب پاکستان سے متعلق انڈرسٹینڈنگ پہلے سے کہیں بہتر ہے۔ ناظرین، یہ ہے زمینی حقائق کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت بھی پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عدالتوں کا احترام کرتی ہے اور پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری میں دلچسپی لے رہی ہے۔ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو وہاں یہ بیانیہ بنایا گیا ہے کہ ٹرمپ جدو آوے گا لگ پتا جاوے گا۔ تحریک انصاف کے حامیوں نے رچرڈ گرنیل کو پاکستان کی خوب شکایتیں لگائیں، 26 نومبر سے متعلق ڈیپ فیک ویڈیوز وائرل کی اور ان سے بانی پی ٹی آئی کے حق میں ٹویٹس کرائے اور یوں ثابت کرنے کی کوشش کی جیسے پاکستان ایک ناکام ریاست ہے اور یہاں کے عوام حکومت سے تنگ آ چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے حامیوں نے جھوٹا بیانیہ بنایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار سنبھالتے ہی حکومت پاکستان کو فون کریں گے اور بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم دیں گے۔ کچھ ڈالر خور یوٹیوبرز نے تو حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کو بھی ٹرمپ کے خوف سے جوڑ دیا کہ بھائی یہ سب امریکہ کے ڈر سے کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ لوگ جو ڈیپ فیک ویڈیوز بنا کر پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا یہ مکرو دھندا یوں ہی چلتا رہے، مگر سچ سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ آج امریکی وفد پاکستان میں ہے اور سب اچھے ہے کی رپورٹ ہے۔ المیہ تو یہ ہے کہ اب اس وفد سے متعلق بھی شور شروع ہو گیا ہے اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک فرمائشی وفد ہے۔ ان کا شعور بس اتنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق ٹویٹ کرنے والا رچرڈ گرنیل تو مسیحا ہے، مگر امریکی سرمایہ کاروں کا پورا وفد پاکستان کی تعریف کرے، حکومت کو اچھا کہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کا اعلان کرے تو غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت تحریک انصاف کے ہی 2022 میں نافذ کردہ پیکا ایکٹ میں مزید ترامیم کر کے قانون لائی ہے تاکہ اس ڈیجیٹل دہشت گردی کا سدباب کیا جا سکے۔ ڈیپ فیک ویڈیوز بنانے والوں کو چیخے مارنا ایک فطرتی عمل ہے، وہ چیخے مارتے رہیں گے اور قانون اپنا راستہ بناتا رہے گا۔ اسی پر بات کر لیکن ہمیشہ کی طرح پہلے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الزام، بہتان، فیک نیوز اور پروپیگنڈا، آخر کب تک؟ سانچ کو آنچ نہیں تو جھگڑا کیسا؟ سچ نہیں رہے گا خاموش، یہ بولے گا زور سے، شور سے، حقائق کی ضرب سے توڑیں گے جھوٹ کا ترسل۔ گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی سردیوں میں بڑی سہولت، مگر رات کو ہیٹر اور انگیٹھی جلا کر سونا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ گیس اور کوئلے سے کاربن مونو آکسائڈ بنتی ہے جو نہایت زہریلی اور بے رنگ و بو گیس ہے۔ یہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ سوتے وقت گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی کو بند کر کے سوئیں۔ گرم کپڑوں کا استعمال یقینی بنائیں۔ محتاط رہیں، محفوظ رہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल खालिद फारूकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, लाहौर स्टूडियो से मेरे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तो खैर नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स इस्लामाबाद से ही हैं मेरे साथ कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ज्वाइन करने के लिए। पीजे मीर साहब मेरा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब ज्वाइन करने के लिए, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। इट्स अ डिलाइट टू हैव यू। खालिद फारूकी साहब, मैं आपसे शो का आगाज करना चाहूंगी। लुब्बे लुबाब तो आपको शो का पता लग ही गया होगा, और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसका भी आपको टेस्ट मिल गया होगा कि एक तरफ अमेरिकन इन्वेस्टर्स आए हैं, उनका डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रहा है, पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान की रियासत की तारीफ कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिन्होंने पहले तो ये बयानिया बनाया कि ट्रंप जो आवेगा लग पता जावेगा, लेकिन वो ट्रंप की क़यादत के अंदर ही जिस तरीके से वफ्द भेजा गया, डेफिनेटली द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नोज अबाउट दिस वफ्द जो कि सरमायाकारी करने पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मतलब एक पॉइंट, एक सेंटीमीटर तक भी वहां तक बात नहीं पहुंची जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तवक्कुआत थी। सो ऑप्शंस क्या बचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? देखिए बीनी, ये जितनी बातें आपने की हैं और जो कुछ कौम जानती है वो यही है कि पीटीआई एक बयानिया बनाती है, उस बयानिए को दोहराती रहती है, इस हद तक कि उसके बेचारे के मासूम जो कारकुन हैं, वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वो उस बयानिए के असीर हो जाते हैं। फिर यही झूठ जो है इसकी क़यादत के सर पे चलता है और वो भी उसी का असीर हो जाता है। ये हम पिछले कई साल से देख रहे हैं, मुसलसल एक ऐसी कैफियत है जिसमें आपने कई दफा देखा कि जो कुछ पीटीआई ने कहा वो इतना गलत साबित हुआ कि बिल्कुल उसके बाद फिर यूटर्न लेना पड़ा, और फिर यूटर्न पे उन्होंने शुरू कर दिया अपना कि मैं तो यूटर्न लेने का आदी हूं, मैं इसको अच्छा समझता हूं, और फिर यूटर्न खान भी कहलवाना खुद को पसंद किया, कहा कि ये बड़े लोग लेते हैं। सो ये पाकिस्तान की मुआशी हालत के बारे में और पाकिस्तान की जो सियासी हालात हैं इसके बारे में जो पाकिस्तान के बाहर जिस तरह का पीटीआई ने प्रोपेगेंडा किया है, और पीटीआई के जो मीडिया सेल नहीं, मैं समझता हूं कि वो बहुत ही घटिया किस्म की एक जो पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तानी रियासत जो है इसके बारे में जो प्रोपेगेंडा करने वाले सेल बन गए, बदकिस्मती से ये वही लोग थे जो पाकिस्तान में सर्विसेज दे रहे थे। लेकिन न जाने क्या हुआ, किस प्रोपेगेंडे का ये असर हुआ, कोई बैरूनी असर है, कोई दुश्मन कुव्वतों का असर है, कोई मखसूस कोई एक माइंडसेट बन गया है जिसके नतीजे में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। और आप देखिए जिस फेक न्यूज की या जिसकी हम बात करते हैं कि जिसमें जाली खबरें तो खैर मतलब खबर तो वो होती नहीं है जो जाली हो, लेकिन जिस तरह से डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा और प्लांटेड न्यूज जो हैं, कई तरह की खबरें मिला के जिस तरह एक माहौल क्रिएट किया गया, उसी में यह कहा गया था कि ट्रंप जो आएगा लग पता जाएगा, और ट्रंप के आने का उन्हें पता लग रहा है, इसलिए कि जिस चीज का वो जिक्र करवाना चाहते थे इसका कहीं जिक्र नहीं है। अब जैसे कहा गया ये 24 से 26 नवंबर के बीच में कि इस्लामाबाद की जो सड़कें हैं वो खून का मंजर पेश कर रही हैं, खून हो गई है। वो देखिए ना, उसमें प्रोपेगेंडा से भी कहीं आगे बढ़ के अगर कोई लफ्ज है ना तो वो इसके ऊपर लागू होना चाहिए। प्रोपेगेंडा से कहीं आगे सारा कुछ इसमें था कि इसमें कैसे आपने दूसरे मुल्कों के जो वाकयात हुए उनको आपने किस तरह उनकी जो वो क्लिप्स जो है उसमें एडजस्ट किए और उसके बाद दुनिया को वो दिखाया, और जितना कुछ पाकिस्तान में ये सारा कुछ दिखाया कि मैं हैरान ही होता हूं कि अक्सर मैं देखता था कि पीटीआई के कई लोग एक ही जो वीडियो मैसेज चलता था उसको आगे दूसरी जगह भेज रहे होते थे, कहते देखें जुल्म और तशद्दुद की इंतहा देखें। अच्छा, ये सारा कुछ जब उनसे किसी से पूछा जाता था कि भी तुम्हारे पास इसका सबूत क्या, कोई सबूत नहीं होता था। सो यही प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ जब अमेरिका में प्रोपेगेंडा होता है तो उसका पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा असर होता है, इसलिए कि अमेरिका जाहिर है कि पूरी दुनिया पे असरअंदाज होता है, वहां की कोई भी हुकूमत हो। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है, बहुत समझने की है कि अमेरिका के ताल्लुकात पाकिस्तान की रियासत के साथ है, अमेरिका के ताल्लुकात पाकिस्तान में किसी फर्द के साथ नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि वो रियासत से बालातर होकर अपने ताल्लुक की बुनियाद पर कुछ ऐसे काम करवा लेगा, जो अमेरिका अगर एक रियासत है तो पाकिस्तान भी एक रियासत है। तो यहां पे जब ये कहा गया कि जनाब वो अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि 2019 में जब हम गए थे वहां पे तो हमें उन्होंने साथ बिठाया था, हमारे साथ बड़ी बातें की थी और पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की थी और ये और वो, तो उसके बाद ये फिर किया गया, डिपेंड करना शुरू कर दिया। अब देखें ना, डिपेंड किस पे किया है? डिपेंड किया है बैरूनी कुव्वतों पे इस वक्त, कि आप पाकिस्तान के अवाम पे अपना इन्हिसार खत्म कर दिया और आप कह रहे हैं कि वहां पे हुकूमत तब्दील होगी, वो जो हुकूमत आएगी
وہ ہمیں سپورٹ کرے گی اور ہمیں باہر نکالے گی, ہمارے مقدمات ختم کروائے گی. ایسا کہیں نہیں ہو رہا. یہ پوری پاکستانی قوم کو یقین رکھنا چاہیے, آپ کو اور مجھے بھی یقین رکھنا چاہیے. جو کچھ اس وقت ہمارے سامنے ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت ڈے بائی ڈے بہتر ہوئی ہے. اس کا اعتراف عالمی اداروں نے کیا, جتنے ورلڈ بینک ہو, IMF ہو, تمام اداروں نے کیا, تمام دوست ممالک نے کیا. امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ بڑھی, امریکہ کو پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں, امریکہ پاکستان کے ساتھ مزید سرمایہ کاری کا خواہش مند ہے. ایک طرف جہاں امریکہ اپنے ملک کے اندر ٹرمپ سرمایہ کاری چاہتے ہیں, وہاں پہ اگر پاکستان میں اس وقت ایک اہم آدمی ایک وفد کے ساتھ, ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ آیا ہے, اس کو عزت دینی چاہیے, اس کو احترام دینا چاہیے, اور اس کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. تمام چیزیں ایک دن میں, ایک رات میں پلٹ نہیں جاتی. یہ سرمایہ کاری کے جب وعدے کیے جاتے ہیں تو اس پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے. اس پر 50% بھی عمل درآمد ہو تو پاکستان کے لیے بڑی اچھی بات ہے. اس کے بارے میں اب جو بھی پروپیگنڈا کیا جائے گا, میرے خیال کے مطابق وہ پچھلے پروپیگنڈے کی طرح پاکستانی قوم اسے ریجیکٹ کر دے گی. Right. Propaganda is rejected as per Farooqi Saab is here. Abdullah Hamid Gul Sahab, discussing the options of Pakistan Tehreek-e-Insaf اس تناظر میں کہ اتنا ہوا بنا دیا بھائی, اتنا ہوا بنا دیا. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے تو ان کے ساتھ بات کرنی نہیں ہے, PTI کے ساتھ, حکومت کے ساتھ یہ بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. حالانکہ آج بھی the Prime Minister of Pakistan was saying کہ چلیں ٹھیک ہے بھائی, ہم ہاؤس کمیٹی بنا دیتے ہیں, اگر جوڈیشل کمیشن بھی بنانا ہے, کوئی ثبوت دو, کتنے بندے آپ کے مرے, کتنے بندے غائب ہوئے, کوئی آپ نمبر تو دیں, کوئی فگر تو دیں, کوئی شواہد تو دیں. جس طرح فاروقی صاحب بات کر رہے تھے, شواہد ان کے پاس ہے نہیں. اب حکومت کے ساتھ یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ جو ان کی امیدیں تھیں وہ بھی اب ایک طرح سے دم توڑ گئی ہیں. سو آپشنز کیا ہیں آگے, یہ معاملات کیسے چلنے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کیسے چلنے ہیں, مانے یا نہ مانے, وہ پارلیمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کا ایک حصہ ہیں, دے آر دا اسٹیک ہولڈرز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. فاروقی صاحب نے بڑے اچھے تفصیلاً بتایا ہے. الاؤ می, تحریک انصاف کبھی بھی حکومت کرنے نہیں آئی تھی, اور مجھے بڑا اس کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ جب انہوں نے اپنی حکومت تھی تو اس میں سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ لوگوں کو خریدنا شروع کیا, اور KP حکومت کے اندر 1284 لوگوں کو ہائر کیا, جن کی کم سے کم تنخواہ جو تھی وہ 25,000 روپے تھی. اور باقاعدہ ایک سکینڈل برآمد ہوا, اور حکومت جو KP تھی اس نے اس کو خود تشتبام کیا, اور 810 ملین پاک روپیز کا جو ہے غبن ہوا وہاں. وہ کون لوگ تھے سوشل میڈیا واریر؟ اب آپ سمجھیں, وہ وہی لوگ تھے جو پاکستان مخالفت کیمپین کو لانچ کرنا تھا, جنہوں نے مستقبل میں. اب آپ آ جائیں محیط پیرزادہ صاحب کو, آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب اچھے بھلے صحافی تھے, اچانک جو ہے پھر کہاں پہنچے؟ امریکہ پہنچ گئے. عادل راجہ کہاں پہنچا؟ برطانیہ پہنچ گیا. کہاں جو ہے وہ جو آج عمران ریاض صاحب کہاں پہنچ گئے؟ وہ وہاں برطانیہ پہنچ گئے. اسی طریقے سے اگر عبداللہ حمید صاحب آپ کو برا نہ لگے تھوڑی سی تصحیح کر دوں, آپ نے کہا کہ وہ صحافی تھے, خیر میں کسی انڈیویجول کے اوپر تو شو نہیں کرنا چاہتی, لیکن ایسا این ایگزامپل اگر آپ اس کو شیئر کر رہے ہیں آپ شیئر کر سکتے ہیں. نہیں سر, الاؤ می ٹو سے دیٹ, صحافی تو وہ نہیں تھے, ان کو بنایا گیا تھا صحافی. لیٹس کریکٹ اٹ, ہم فیکٹ صحیح رکھ لیتے ہیں نا سر, کچھ ہمارا اور فاروقی صاحب کا بھی خیال کر لیں, پی جے میر صاحب کا بھی خیال کر لیں, تو ان کو بنایا گیا تھا. پی جے صاحب تو کیا بات ہے, میں تو بہت ان کا پرستار ہوں, لیکن میں صرف اس میں گزارش یہ کرتا چلوں کہ میں نے آپ کو وہی کہا نا کہ باقاعدہ بنائے گئے لوگ, میں یہ بتا رہا ہوں, وہ وجاہت اسخان, پھر اسی طریقے سے شاہین صاحبائی کو آپ دیکھیں وہ کہاں کیا کر رہے ہیں. میں اسپیسیفک ہونا چاہتی ہوں یہاں پہ, کیونکہ میں محیط پیرزادہ صاحب کی بات کر رہی ہوں. جی جی جی, مطلب یہ ہے کہ یہ سارے جتنے لوگ تھے آپ دیکھ لیں کہ یہ کہاں پہنچ گئے اور کیا مقصد تھا اور کیا بن رہے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو افغانستان سے اسلحہ نکالنا ہے اور اس خطے کے اندر ایک بیلنس قائم کرنا ہے, اور خاص طور پہ انڈیا کے معاملات کے اوپر اب وہ ایکسپورٹ ہو گئے ہیں. 18,000 لوگوں کو بھارت نے اندیا دے دیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر مقیم جو امریکہ میں لوگ ہیں ان کو واپس بلائیں گے. 5,37,000 لوگوں میں سے, جو کہ ٹوٹل غیر مقیم تعداد جو ہے جو کہ وہاں رہتی ہے امریکہ میں, اس کا 5% بنتا ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر بھارت کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں, اور امریکہ کو اپنی بائیڈن کی ہوئی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے, اور وہ کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ یہ جو ابھی وفد آیا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پہلے پاکستان اور پاکستان کی حکومت اور ریاست کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کرے, تاکہ پاکستان کی مدد سے چین کے ساتھ معاملات کے اندر درستگی لائی جائے, اور اس خطے کے اندر ایک بیلنس آف پاور اور اس کی ایکویژن جو ہے وہ
वो कायम की जाए, ये इसकी हकीकत है। अब इस दौरान में तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था और जो उनकी ख्वाहिश थी, जो आपने कहा कि वो ये ऐसे ही है जैसे मेरे बच्ची जो थी ना, छोटी थी, तो जब वो कहती थी कि मेरे बाबा आएंगे तो वो फिर सबको मारेंगे, फिर ये करेंगे। बाबा आए, लेकिन बाबा ने किसी को कुछ नहीं कहा और बाबा ने हंस के बात टाल दी। अमेरिका के सदर का भी यही मसला है। उनको आपने, बाइडन साहब को भी और ट्रंप साहब दोनों की इलेक्शन कैंपेन में मिलियंस लगाए, और अभी ये जो क्या कह रहे हैं, ये इन्होंने यही कहा ना कि 2 से 3 मिलियन डॉलर जो है इमरान खान की बकायदा के जो लॉबिंग कैंपेन है उस पे हर महीना खर्च हो रहा है, यानी कि 86 अरब रुपए, 86 करोड़ रुपया महाना। ये 86 करोड़ रुपए, अब आपको पता चला खैबर पख्तूनख्वा क्यों गरीब हो रहा है। अब आपको पता चल गया कि क्या वजूहात है। अब ये समझें, इसका मतलब है कि एक आदमी के पास, आप ये फारूकी साहब बैठे, बड़े समझदार आदमी हैं, हमारे पीजे साहब बैठे हैं, आप खुद माशाल्लाह, मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, पंजाब की हुकूमत हो, केपी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत हो, आपके पास वफाक के अंदर सेनेटर्स मौजूद हो, आप क्या हुकूमतें तोड़ेंगे या इंतजार करेंगे? आपने हुकूमत इसलिए तोड़ी क्योंकि आप एक इंटरनेशनल एजेंडे के ऊपर कायम थे। वाकई साजिश थी, ये तागूती साजिश थी, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ थी। और नतीजा ये है, आपने देख लिया कि आज जो मामलात जिस तरीके से चल रहे हैं, जब पाकिस्तान में खैर की बात आती है तो लोगों को तकलीफ पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं। ये है वो हकीकत। अब आप इसको देख ले, IMF वर्ल्ड बैंक का कर्जा देता है पाकिस्तान के गरीब कौम को, ये धरना देते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई खैर की बात आती है, ये वहां जो है मुखालिफिन के बैनर लगा लेते हैं, ये पाकिस्तान की हरदा सराई करते हैं, झूठी जो है मुहिम जो है वो चलाते हैं, और फेक न्यूज और डीप स्टेट जो इन्होंने अपने, अच्छा तमाम वो लोग कौन है लॉबिस्ट, अब ये भी गौर करने वाली बात है, वो तमाम लॉबिस्ट वो हैं जिनका खुरा लगाए तो आपको पता चलेगा कि गोल्डस्मिथ फैमिली के साथ मिलेगा, जैक गोल्डस्मिथ के साथ मिलेगा, और उन लोगों के साथ मिलेगा जो गजा पे इसराइलियों के साथ खड़े हैं, वो सेनेटर, वो कांग्रेसमैन। भाई अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई प्रेशर लेना होता तो बाइडन की दौरे हुकूमत में 368 अरकान कांग्रेस ने बकायदा एक बिल पास किया। क्या कर लिया पाकिस्तान का? क्या पाकिस्तान की कान पे जूंग भी रिंगी? कुछ नहीं हुआ। ये तकलीफ में है, ये जवाल पजीर है। और अभी आप देखना, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ना अली अमीन गंडापुर नजर आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ना उनकी हुकूमत नजर आती है, तो कोई तब्दीली आएगी। और अब ये एजेंडा जो लेके आए हैं, ये मुज़ाकरात करना ही नहीं चाह रहे थे, ये टाइम गुजार रहे हैं। बिल्कुल सही कहा फारूकी साहब ने कि ये लोगों पे तारीख का दबा देते हैं। कौन आएगा? ये तो हमें नजर आ रहा है, ये हमें भी इतलात मिल रही हैं कि गंडापुर साहब इज वेरी डाइसी, आज हैं कल नहीं है, वो होता है ना जी का जाना ठहर गया, सुबह गया शाम गया। तो फिर केपीके में कौन आएगा? इन हाउस तब्दीली आएगी कि या मुकम्मल तौर पर तब्दीली देख रहे हैं केपीके में? ये जरा बात मुकम्मल करें। अंदर तो अब बिल्कुल वो कहते हैं ना कि बिल्कुल तब्दीली आएगी, और क्योंकि केपी में लड़ाई हो रही है भाई इस टाइम पे, जो एक दहशतगर्दी की जंग लड़ रही है फौज हमारी वहां, और उसके अंदर अगर सूबे की तरफ से ताउन नहीं आएगा और उसके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को जीरो कर दिया जाएगा, उसकी पुलिस का मुराल सत्यानाश कर दिया जाएगा, ये तमाम बातें जो है इशारा दे रही हैं कि केपी में एक बड़ी तब्दीली आने को है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि गौहर साहब, जो हमारे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उनका भी मुस्तकबिल कोई मुझे ब्राइट नजर नहीं आता। मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता रहा हूं। और ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अब्दुल्ला मीर गुल साहब, आपको गौहर खान साहब का भी फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। वैसे मेरे ख्याल से अपने हिस्से की वो लाइमलाइट बिटोर चुके हैं, इससे ज्यादा और आगे क्या करेंगे? और आपको गंडापुर साहब का भी कोई खास फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, लेकिन केपीके के अंदर आपको एक बहुत ही तब्दीली नजर आ रही है। जी, अंदरूनी तौर पे टूट फूट का शिकार है पीटीआई, और इस रवैये, इस रविश के साथ अगर वो चले, पाकिस्तान मुखालफत, पाकिस्तान अफवाज मुखालफत, पाकिस्तान मुहाफिज मुखालफत, ये याद रखें कि इनका दर्दनाक अंजाम होने वाला है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, 9 मई के ऊपर अफवाज पाकिस्तान रावलपिंडी किसी सूरत कोई बातचीत, कोई मज़ाकरात करने के लिए तैयार ना था, ना है और ना होगा, चाहे। and so do you. राइट, इस मामले के ऊपर आई थिंक सो वी बोथ शुड रेस्ट आवर केस, क्योंकि इसके बाद तो कोई और बात बनती नहीं है। पीजे मीर साहब, मुज़ाकरात इन्होंने करने नहीं थे। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पीजे मीर साहब,
गवर्नमेंट भी मुज़ाकरात के जरिए इनको एंगेज करना चाह रही थी जस्ट फॉर द टाइम बाइंग टैक्टिक्स। चलें ठीक है, इनके साथ टेबल पे बैठते हैं, लगे रहते कुछ ना कुछ सूरत हाल निकल आएगी। पीटीआई इसी इंटेंशन के साथ आई थी कि उनको भी टाइम गेनिंग टैक्टिक्स चाहिए थे। अब इन मुज़ाकरात का वही हल हुआ जो कि नतीजा निकला, जो कि हम सब कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये नहीं होने मुज़ाकरात, अब मुज़ाकरात नहीं होने। सो फिर व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, आगे चलना कैसे है? Disaster, total disaster for the country. Not the political parties. ये political parties जितने भी है, गवर्नमेंट ले लो, ऑपोजिशन ले लो, देखो जब तक आप बात नहीं करोगे 1914 की आर्मिस्टिस किस तरह हुई थी, मुझे बताएं। वर्ल्ड वॉर 1 जो खत्म हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 किस तरह, बात के साथ, हमेशा बात के साथ खत्म होती है। कोई भी कहीं भी डेडलॉक, हेडलॉक और आप कह लो कि इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, जब तक आपके डायलॉग नहीं होंगे, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेट्स पुट इट दिस वे कि ये जो है पीटीआई, ये कल चलो इलेक्शंस लेके जीत के आती है, अगर ये जीतती है, क्वेश्चन मार्क, अगर ये जीत के आती है, यू रियली थिंक कि आज के गवर्नमेंट को आप रगड़ के एंड आप ऐसी कोई गिद्दड़ सिंगी लेके आ जाओगे कि आप इकोनॉमी को ओवरटर्न कर दोगे, आपके मईशी हालात इतने बेहतर बन जाएंगे कि ओवरनाइट तब्दीली आ जाएगी? नो, इट डजंट वर्क। ये कंटिन्यूटी पॉलिसीज के साथ बनता है और ये लोग नहीं सोचते। अभी आप पहले प्रोपेगेंडा की बात करते हैं, एक तो मैं गवर्नमेंट को कहूंगा यार डरते क्यों हो? यू आर अ सॉलिड गवर्नमेंट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी ओपिनियन है, ये जो मर्जी करें। इन्होंने भी किया हुआ जब भी ऑपोजिशन में थे, इन्होंने इस तरह के ये इस तरह को दूध के धुले हुए नहीं है, सब ने किया है और सब अमेरिका भी जाते हैं, वहां लॉबिंग फर्म्स भी हायर की हुई सारों ने। द क्वेश्चन इज, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट। भुट्टो साहब के लिए कितनी अपीलें गई थी, यहाँ कुछ हुआ? नथिंग हैपेंड, ही वाज हैंग्ड, सिंपल एज दैट। तो जो हमने करना है। और आप ये तो जाहिल लोग हैं कि वो समझते हैं कि भाई ये ट्रंप आ गया तो ऑल ऑफ अ सडन उसकी फोकस यहाँ होगी। भाई ट्रंप ना इमरान के मामे का पुत्र है ना चाचे का पुत्र है, उसने अपने मुल्क को देखना है कि कोई चाचे मामे का पुत्र है, पोर्ट्रेट उन्होंने ऐसे ही किया था। ये जाहिल लोगों ने किया, अंडरस्टैंड, ये जाहिल लोगों ने। आई वुडंट टेक एनी नोटिस ऑफ सच पीपल बिकॉज कॉमन सेंस डजंट अलाउ यू टू इवन थिंक लाइक दैट कि ऑल ऑफ अ सडन इलेक्शन खत्म हुआ और ट्रंप ने आके आज इसको निकालो। और यार ये कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है ना, खुदा के लिए। आपके कोर्ट्स हैं, आपके कोर्ट्स डिसाइड करेंगे जो भी आपने करना है, ये गवर्नमेंट नहीं करती है। क्या हमने ये गवर्नमेंट ने अंदर किया? ये तो आपके जो वायलेशंस हुई हैं उसके लिए आप अंदर हुए ना। सो मैं इस चीज की तो डिबेट ही ना करो ना, दिस इज अ नो टॉक। द क्वेश्चन इज, आपको 1000 किस्म की क्रिटिसिज्म्स मिलेंगी और याद रखें वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती हैं जो अपने आप पे तनकीद लेना बर्दाश्त न करें। तनकीद होगी, जो मर्जी गवर्नमेंट आ जाए तनकीद होगी और ऑपोजिशन ही करती है, लेकिन इसको काउंटर करने का ऐसा तरीका है कि आप डिफेंसिव ना हो, आप आगे फ्रंट फुट पे आके खेलो। हाँ भाई क्या बात है बताओ ना। द क्वेश्चन इज कि whatever you saying, please bring the facts in front. ये फैक्चुअल बात करो, डोंट हाइपोथेटिकली। आप जब बात करते हैं तो उसके अंदर नुकसान क्या होता है? बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं पीजे आप, मतलब ये बड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव भी आप एक लेकर के आए हैं कि गवर्नमेंट को डिफेंसिव नहीं, बिल्कुल फ्रंट फुट पर आना चाहिए। लेकिन सर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है और यहाँ से बस मैं सिर्फ आपके लिए सवाल छोड़े जाती हूँ, क्योंकि पीका एक्ट आया। अब पीका एक्ट को लेकर के सहाफती तंजीमें एक तरफ हैं क्योंकि उनको एक ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, हुकूमत के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है, और उन सहाफती तंजीमों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल गई है, और इसलिए मिली है कि ताकि वो इस मामले को मजीद हॉट कर सके, ग्रिल कर सके, मसला पैदा हो हुकूमत के लिए। फॉरगेटिंग दैट कि खुद 2022 के अंदर जब बानी पीटीआई सरकार में थे तो वो इसके अंदर एक ऑर्डिनेंस ला करके एक तरमीम कर चुके थे। इसके ऊपर मुझे आपका जवाब चाहिए कि ऐसे मामले के अंदर हुकूमत किस तरह से डिफेंडेबल के फ्रंट फुट पर आ सकती है। आप ही से स्टार्ट करूंगी, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत
मुंह खोले आपकी मुंतजिर है। हमने अपने आप उसे 3 बार मौत देखी। ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीज़ा लग गया था, वर्क वीज़ा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम, मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी एहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनो बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफ्टेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद करते हैं, डिस्कशन को रिज्यूम करते हैं जी। खालिद फारूकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पीजे मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एंड वेरी ऑनरेबल अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। पीजे मीर साहब, हुकूमत को भी दलेर बन के अपना जो डिफेंस है वो फ्रंट फुट पर आके करना चाहिए। अब ये पीका एक्ट को लेके इतना वावेला हो रहा है, ठीक है, कोताही जरूर हुई कि रिजर्वेशंस को दूर करना चाहिए था, जो कुछ मुबहम शिके हैं उनके ऊपर एक्सप्लेनेशन देनी भी चाहिए था और समझाना चाहिए था। Atta Taran is a very good man. I think उन्होंने जो एक मिस्टेक की है कि I think एक मीटिंग कर लेते जर्नलिस्ट के साथ एंड देन उसके बाद एक आपने जो लॉ पास करना है बिल्कुल करें। ये जो पीका का लॉ है, देखें, याद रखें, हुकूमत पे तो तनकीद होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो स्टेट के खिलाफ एंड पर्टिकुलरली हमारी जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, हमारी आर्म फोर्सेस के खिलाफ अब्दुल्ला ने उसमें बात की है, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। आप कोई भी आर्मी चीफ को जब आप एक निशाना बनाते हो सोशल मीडिया के अंदर, याद रखें इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है एक जवान पे जाता है। ये वो जवान है जो कि पहली गोली खाता है दुश्मन के आगे, एंड यू वांट टू डिमोरलाइज हिम बाय रिडिकुलिंग द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आप तनकीद जरूर करो, ऐसी करो जो बराए तामीर हो, कि इंसान सब सीखे उससे, लेकिन आपने अगर एक 1 पॉइंट एजेंडा पे अगर आपने तनकीद करनी है, दैट इज नॉट तनकीद। मेरी नजर में वो हॉस्टिलिटी है। दैट इज जर्नलिस्टिक हॉस्टिलिटी ऑन द सोशल मीडिया एंड दैट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। स्टेट के खिलाफ मत करो, हुकूमत को तनकीद करो, सब करते हैं, ऑपोजिशन भी करती है। आप अगर आपने करना है, बट डोंट रिडिक्यूल ना। आपने ऐसी ऐसी चीजें बना के मीडिया के अंदर, वो कभी मरियम के खिलाफ, कभी नवाज के खिलाफ, कभी इसके इमरान के खिलाफ, कभी ये सारा ये जो गंद हो रहा है, वी आर डैमेजिंग आवर ओन फैब्रिक ऑफ द कंट्री। हमने इसको प्रिजर्व करना है। वी हैव टू प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर। देखो बिनेश, हम चारे बैठे हैं यहाँ, हमारे टाइम पूरा हो जाएगा, बट व्हाट आर वी गोइंग टू लीव एज अ लेगेसी फॉर द कंट्री, फॉर द कंट्री। वी हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म। हम लॉन्ग टर्म नहीं है, हमारी इंटायर थिंकिंग है शॉर्ट टर्म, एडहॉकिज्म, एंड दैट इज हाउ वी ऑपरेट इन दिस कंट्री। वी हैव गॉट टू गेट आउट ऑफ दिस कोकून एंड थिंक लार्जर। जब हम इकबाल के एग्जाम्पल देते हैं, कायद आज़म का एग्जाम्पल देते हैं, मोहम्मद अली का, यू नो, एंड ऑल दोस पीपल, हम खुद क्या कर रहे हैं? मुझे बताओ ना, हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को ही गिरा रहे हैं। अब क्या फॉरेन डेलीगेशन आता है, आप एक दूसरे की बदखोइयां शुरू कर देते हैं। वो अगर कोई इन्वेस्टमेंट लेके आता है, और भाई वो आपके लिए भी, अगर आप ऑपोजिशन में हो, कल ये गवर्नमेंट है, ये रहे ना रहे, इन्वेस्टमेंट तो आई है ना, किसके लिए आई है? कंट्री के लिए। सो हमारी जो सोचें हैं बिनेश, वी गॉट टू चेंज आवर वे ऑफ थिंकिंग। थोड़ी टॉलरेंस दिखाएं, थोड़ी आप कह लो संजीदगी दिखाएं, एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। ये नहीं हो रहा। उसमें पता क्या हो रहा है? आपके प्रोग्राम में किसी में आ जाए, ये तो चोर है जी, मैं तो बहुत अच्छा हूं, तो वो कहेगा नहीं जी ये चोर है, मैं बहुत अच्छा हूं। ये आपकी नेशनल डिस्कशन है। इस नेशनल डिस्कशन को नहीं हो रहा ना पीजे, लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये अब से तो नहीं हो रहा ना, ये पिछले 5-7 सालों से यही तो होता चला आ रहा है। यही वजह है, वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग। आपकी और मेरी आज बात, और अब्दुल्ला, यू नो, इनको खालिद की बात होनी चाहिए। हम एनवायरनमेंट की बात करें, हम साफ पानी की बात करें, हम अवाम की बात करें, हम इसकी ये जो फीस इतनी हेवीज हो गई हैं इनकी बात करें, बच्चों की। मुझे ये बताओ, आर वी टॉकिंग दैट? नो, वी आर नॉट। हम तो इन पार्टीज की पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात कर रहे हैं।
डू वी केयर अबाउट द पॉलिटिकल सर्वाइवल? हमने तो पाकिस्तान की सर्वाइवल की बात करनी है भाई। अगर पाकिस्तान की सर्वाइवल नहीं है, these parties will come and go. आप देखते नहीं हमारा सिस्टम क्या है, अगर कोई पार्टी ऊपर जाती है उसके साथ सारे लोटे उधर चले जाते हैं, कोई उधर जाती है कोई उसके साथ जाता है। पॉइंट टेकन पीजे, बड़े आपने वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई स्टिल फील कि अभी ये पिछले कुछ टाइम से हमें लग रहा है कि हम कुछ प्रोडक्टिव जो डिस्कशंस है वो भी कर रहे हैं, वरना अगर इससे मैं 1 साल पीछे जाऊं, 2 साल पीछे जाऊं, तो मुझे लगता है कि हम तो बिल्कुल ही नॉन प्रोडक्टिव जो है वो डिस्कशंस कर रहे थे टेलीविजन शोज के ऊपर, कंसिडरिंग दैट कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना आया था कि हम सिर्फ सियासत और सियासतदानों के इसी तरह के बयान जो कि पीजे बता रहे हैं, हम इनके अलावा और कुछ डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। आई थिंक सो बेटर टाइम्स आर स्टिल कमिंग। मैं बिल्कुल फारूकी साहब की तरफ जाना चाहूंगी। फारूकी साहब, एक तो आपको डिजास्टर वाले लफ्ज से बड़ा इतराज था, बता दें क्या मसला है, आप एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दैट, बिकॉज आई नो यू वांट टू टॉक ऑन दिस। लेकिन मेरा सवाल ले लीजिए, क्योंकि जब हम पीके एक्ट की बात करते हैं ना, तो ये पीजे एक सोच की भी बात कर रहे थे। हम पाकिस्तानियों की एक सोच ये भी है कि किसी को ना जवाबदेही पसंद नहीं है, कोई नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई अफसर हो या कोई ऐसी बॉडी हो या कोई ऐसा शख्स हो जिसको उसे अकाउंटेबल होना पड़े कि हाँ मैंने ठीक किया है या मैंने ठीक नहीं किया। होना चाहिए, अगर टेलीविजन चैनल्स के ऊपर पैमरा है और अगर सोशल मीडिया को अंदर किसी रेगुलेटरी अम्ब्रेला के लाया जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं देखिए बीनिश, मैं पीजे मीर ने अभी जो मीडिया के हवाले से जितनी गुफ्तगू की, मुझे उसमें किसी लफ्ज से कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि सारी बातें वो हैं जो हमारी इज्तिमाई सोच है उसकी अक्कासी करती हैं। Absolutely. असल मसला ये है कि हुकूमत से जो मिस्टेक, पहले मैं इस मामले पे थोड़ी सी बात कर लूं, हुकूमत से जो मिस्टेक हुई है वो ये है कि जो सोशल मीडिया पे जिस तरह की मुबालगा आराई की जाती है, जिस तरह की गुफ्तगू की जाती है, जो कुछ गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो कुछ किया जाता है, मैं तो उसे किसी जर्नलिस्ट दुनिया का कोई फर्द नहीं मानता जो सोशल मीडिया पे ये कुछ कर रहा था। आप देखिए ना, मैंने आपको बताया कि जो हमारा आम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो एक हमारे मुल्क में या दुनिया के हर मुल्क में जो चल रहा था और चल रहा है, उसमें हम जिन खबरों की बात करते हैं उसमें हम फेक न्यूज़ की बात करते हैं, लेकिन हम जिस चीज़ को समझते हैं वो ये है कि वहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन इस मीडिया में भी होती है, मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, प्लांटेड न्यूज़ भी होती हैं, ये सारी कुछ खबरें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद गैर मुस्तनद खबरों को भी ठीक करने का कुछ ना कुछ कोई गुंजाइश होती है। असल मामला यह है कि जो कुछ सोशल मीडिया पे किया जा रहा था, जो कुछ किया जा रहा है इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ, पाकिस्तान के अस्करी इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसके खिलाफ, शख्सियात जो हैं उनके खिलाफ, और रियासत के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ किया जा रहा था, मुझे बाज़ औक़ात यूं महसूस होता है कि बिलखुसूस जो पीटीआई से ताल्लुक रखने वाला जो एक तबका है और जिसको बैरून मुल्क भागने का मौका मिल गया, उस तबके ने वहां जाके सेम वही एक पोजीशन ली है जो कि भारतीय सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है, या भारतीय मीडिया पे भी इवन नहीं किया जाता, जो सोशल मीडिया पे उनके मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो हैं वहां पे जो कुछ किया जाता है, यही कुछ वहां पे इनके लोगों ने किया है। अगर यहाँ पे हुकूमत अवाम को और जर्नलिस्टों को, कम्युनिटी पूरी को ये कुछ क्लियर करने में कामयाब हो जाती कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच रहे, और ये सारा बता दिया जाता कि ये उन अनासर के खिलाफ भी है जो सोशल मीडिया का एक गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शायद ये इतनी हलचल भी ना होती, इतने इख्तलाफात भी सामने ना आते। लेकिन अब भी मैं आपको ये बताऊं कि कानून बन जाते हैं, ये कानून भी बन गया, उजलत में बना या सही टाइम पे बना, इसमें भी अभी मौका है हुकूमत के पास भी। ये पार्लियामेंट है, यहाँ पे पाकिस्तान में एक जमहूरी निज़ाम है, इस निज़ाम में खामियां हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायलॉग का रास्ता अभी भी बंद नहीं हुआ। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक हुकूमत में इतनी अकल है, जो वज़रा लोगों में जाते हैं, जो जर्नलिस्टों में जाते हैं, जो मुख्तलिफ जगह पे टीवी शोज में जाते हैं, उनको नहीं पता कि टेम्परेचर क्या है और जर्नलिस्ट क्या समझते हैं। अगर वो जर्नलिस्टों को मुतमईन कहीं करते हैं और ये बने हुए कानून में भी कहीं तरमीम हो जाती है, तो इसको वेलकम कहा जाना चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उन्होंने बर वक्त भी बात की है और दुरुस्त बात भी की है। हाँ, इसमें जब वो सोशल मीडिया का एलिमेंट मिलता है ना साथ शामिल, वो यूट्यूबर जो कि पैसा कमाने की खातिर, जिनके जो एक गाली के बदले $10 कमाते हैं, जो बुरा भला कहने के बदले $10, $20, $100 कमाते हैं, और शाम को अपनी दिहाड़ी गिनते हैं कि देखें आज हमने इतना पैसा कमाया है। और ये इन लोगों की आपको आमदन का अंदाजा है, जिन लोगों के अभी दिहाड़ी तो ना कहीं, ये तो वारदातें हुई ना, वारदातें जो दिहाड़ी थोड़ी थोड़ी होती है, करता हूं वारदातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है। कभी इनकम का किसी ने अंदाजा किया? जेन्युइन सहाफी है या जेन्युइन रिपोर्टर है या जेन्युइन जर्नलिस्ट है, उसको डरने की जरूरत है नहीं। उसको देखिए, उसको खदशा एक हो जाता है। हाँ। डरता नहीं है वो, उसको खदशा ये हो जाता है कि इस कानून का कहीं इस्तेमाल मेरे खिलाफ ना किया जाए। यहाँ पे अगर हुकूमत जो है ये मुतमईन करने में कामयाब हो जाए तो मेरे ख्याल में यहाँ इख्तलाफ जो है वो कम भी हो सकता है। बाकी रही अब बात जो डिजास्टर वाली आपने बात की थी, पीजे मीर साहब ने एक लफ्ज कहा
बड़ी अच्छी वो बात कर रहे थे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज अगर हम 8 फरवरी जो पिछले साल इलेक्शन हुए थे, कितना टाइम रह गया उसमें, मतलब जाहिर है कि तकरीबन 1 साल होने को आ गया। 8 फरवरी के बाद आप मुझे बताएं कि पीटीआई की जो पोजीशन 8 फरवरी के बाद थी, आज 12 माह होने को तकरीबन आ गए हैं, कि आज वो पोजीशन है? क्या पंजाब में उनके लिए कोई शख्स उठ के बाहर आ रहा है? क्या केपी में उनकी पार्टी टूट फूट का शिकार नहीं हुई? क्या सिंध में उनकी पार्टी का नामो निशान भी है? क्या बलूचिस्तान में उनकी पार्टी कहीं नजर आती है? क्या आजाद कश्मीर में उनकी पार्टी कहीं नजर आती है? उनकी लीडरशिप की गलतियों की वजह से, उनके लीडरशिप के यकतरफा रवैये, हठधर्मी की वजह से पार्टी टूट फूट गई, बिक गई है। मैं समझता हूं कि उसका वोटर है आज उनकी काल पे हो सकता है वोट दे, मैं उसकी राय पे तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन उनकी अपनी हमाकों की वजह से जो पार्टी का हशर हुआ है, और इसके अलावा जो असल मसला ये है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। वो जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं अपनी शराइत पे करना चाहते हैं। शराइत का वक्त मेरे ख्याल के मुताबिक करना चाहते हैं और अपनी मर्जी के लोगों के साथ करना चाहते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि शराइत का वो वक्त जो पहले था आज उनके पास नहीं है। दूसरी बात ये कि वो साहब जो खुद अपने किसी मामले की वजह से जेल में हैं, वो किसी पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, ना अपनी पार्टी के किसी लीडर पर, ना ही दूसरी किसी पार्टी के लीडर पर। आप देखिए उन्होंने अचकज़ई साहब को अपना नुमाइंदा बनाया, 2-3 दिन के बाद उनको बेइख्तियार करके फेंक दिया। फजलुर रहमान साहब को अपना नुमाइंदा एक टाइम पे बनाया, उनको फेंक दिया। वो ना तो डायलॉग के हैं, ना वो किसी के साथ अलायंस बना सकते हैं, वो उनकी सोलो फ्लाइट है। अब यहाँ पे जो डिजास्टर नजर आता है, मुझे इस पार्टी का डिजास्टर नजर आता है, खुदा न खास्ता देखिए एक बड़ी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी जो है अगर टूटे तो ये पाकिस्तान का भी नुकसान है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टियां बननी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, लेकिन वो अगर आप क्या कह सकते हैं जब मुल्क की मईशत तरक्की कर रही है, जब ये हुकूमत, जैसे पीजे मीर साहब ने कहा कि मुस्तहकम हुकूमत भी है, अगर ये इसी तरह से चलती रहती है तो मुझे ये बताएं कि 2 साल बाद, 3-4 साल बाद जब इलेक्शन होते हैं दोबारा, तो 4 साल के बाद आप क्या इस बात पे यकीन रखते हैं कि ये जो इलेक्शन जो पिछला हुआ था ये उसी तरह से इलेक्शन में नाकाम नहीं हो जाएंगे? फिर कहां जाएगी ये पार्टी? वक्त तो ये है कि डायलॉग किया जाए, ये अपनी स्पेस बनाएं, जो इनका शेयर बनता है पाकिस्तान के मामलात में उसमें शेयर लें। अच्छा तज्जिया फारूकी साहब, आपका पॉइंट इज वेल टेकन, लेकिन जो बानी पीटी आए हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, वो बिल्कुल कुछ और सोचते हैं। अभी एग्जैक्टली 12 घंटे पहले, ये जो कल मैं भी यहाँ पे इसी टाइम पर जो शो करके गई थी ना, हम उसके अंदर डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह जुनैद अकबर साहब को जो नया पैगाम मिला है और उससे पता चला है कि जी एक नई पीटीआई बन रही है। कौन सी नई पीटीआई बन रही है? होम्योपैथिक लीडर साइड पे, फ्रंट लाइनर्स, हार्डकोर जो सियासत करते हैं, जो हार्डकोर जिनका तर्ज है, उनको आगे लेकर के आने। तो वो तो जो बात और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो ना मेरी, ना पीजे मीर साहब, ना आपकी, ना फारूकी साहब, वो किसी की बात को कुछ भाव में नहीं डाल रहे हैं। उनको पता है कि उनको क्या करना है। They don't think so that they are over. They don't think so that they are in a disaster. यही तो नहीं, वो देखिए ये पार्टी जो है, ये इसका मकसद है ना आने का, मैं वही फिर बात वही आ रही है। एनाटोल लेवन की किताब पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री में पढ़ें कि पाकिस्तान क्योंकि न्यूक्लियर बन गया है और पाकिस्तान को जो है अब है खीर है, और इसकी फौज जो है इसकी महाफ है, और उसकी लीडरशिप के मुतल्लिक तनाज़ा गुफ्तगू में और उसके अंदर शकूक और शबाहत डाल दें, और जब आप शकूक शबाहत डाल देते हैं तो पाकिस्तान के टुकड़े करना आसान होगा। ये मैं नहीं कह रहा कि ये किताब है, दोनों हमारे मौजूदीन आपने भी शायद पढ़ी होगी, और ये 12 साल पहले लिखी गई थी, और उसके लिए वो तरीकाकार बताता है कि आप इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज का जो है कयाम करें, इसके लिए आप पॉलिटिकल आइकन्स क्रिएट करें, लीडरशिप खड़ा करें जो पाकिस्तान फौज के मुतल्लिक दिन और रात बकवास करे। और मेजर गौरव आर्या क्या कहता है, जो भारतीय पाकिस्तानी दुश्मन है, वो कहता है कि इमरान खान ने वो काम कर दिखाया जो हम भारत ने बिलियंस लगा के जो है आज तक 7 दहाइयों में न कर पाए, और पाकिस्तानी फौज के अपने कपड़े जो है वो अंदर फाड़ रही है अवाम, उसके अवाम के जरिए वो पढ़वा रहा है। ये अल्फाज हैं। अब अभी पीजे मीर साहब ने कहा कि आप अभी अमेरिका को देखें, अमेरिका की फौज हार के आई अफगानिस्तान में, वियतनाम से हार के आई, क्या उनके पुतले जलाए गए, उनकी मुतल्लिक इस किस्म के कोई कायदे आजम के घर जलाए गए, वहां कहाँ कैपिटल हिल के उसके ऊपर पेंटागन पे हमला किया गया? नहीं, यहां हुआ। क्यों हुआ? आज शहादतें कौन दे रहा है? मेजर, अभी जो मेजर साहब जो है हमजा साहब शहीद हुए, किसके लिए शहीद हुए? आपके लिए, मेरे लिए, इस कौम के मुस्तकबिल के लिए। अभी उसके हवाले से कोई आपने इनकी तरफ से मजम्मती कोई बयान देखा
कोई आपने इनकी ताजियत का कोई प्रोग्राम देखा? नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा तो सिर्फ वो मिलेगा। पीजे साहब सही कह रहे हैं कि जनाब इस टाइम पे कोई तामीराती प्रोग्राम होते। अब हम अमेरिका के ऊपर बात कर रहे होते कि अमेरिका और पाकिस्तान के मुआशी ताल्लुकात कितने मुस्तहकम थे, माजी में उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया उनके लिए, क्या क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन नहीं, हम इस टाइम पे बैठे सियासत डिस्कस कर रहे हैं, और वो भी घटिया सियासत जो कि एक पार्टी से और एक शख्सियत से रिलेटेड है, जिसका मकसद पाकिस्तान के बखिए उधेड़ना है। मुझे इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इसके अंदर आप देख लेना, आपको नजर आ जाएगा। जब से उनको ये पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप भी आके पत्ते हवा देने लगे, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान का मुकाम मजीद बेहतर हो रहा है। पाकिस्तान की अफवाज के लिए मजीद जो है वो बेहतरियां और पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत के लिए आ रही हैं। ऐसी सूरत के अंदर एहतजाज उन्होंने करना ही करना है। आप जो मर्जी कर लें, वो आप नहीं भी चाहेंगे तो ये आपके गले पड़ेंगे। ये पेका का कानून है या कोई और। हकीकत यह है कि डिजिटल जो इस टाइम पे डिजिटलाइजेशन है, वो कुछ और तकरीबन 5 से 7 साल के अरसे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खा जाएगी, खत्म कर देगा। बिल्कुल उस टाइम पे कवानीन जो है मजीद तब्दीलियां आएंगी और नए पैका के कानून के अंदर अमेंडमेंट्स आनी चाहिए। मेरे ख्याल में इतना अहम चीज है कि ये जो आइंदा आने वाले वक्तों में जिस तरह से गैस की अदालतें हैं, जिस तरह से रेलवे की अदालत है, बैंकिंग कोर्ट की अदालत है, खुदा के लिए इसकी भी अदालत बनाएं। आपको एक अदालत, ताकि वो इन कवानीन को समझे और ये जो साइबर क्राइम जिससे सिर्फ रियासत और कोई अफवाज पाकिस्तान के लोग रेडिक्यूल नहीं हो रहे, बल्कि आम आदमी भी रेडिक्यूल हो रहा है। जिसके मुतालिक आप ये मुझे बताइए कि ये जो इस टाइम पे वीडियोस आई, जो हमारी एक इंतहाई अहम खातून है, हमारी वजीर आला हैं, उनके हवाले से, हमारे जो आर्मी की लीडरशिप है उनके हवाले से जो बातचीत आई, क्या ये दुनिया में कहीं हो सकता था? पेट्रियट एक्ट बनाया अमेरिका ने, कत्ल करवा देते हैं वो मावराए अदालत। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने इजाजत दी थी कि मावराए अदालत कत्ल कर दो, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो और अमेरिका के खिलाफ हो, करके दिखाएं। लेकिन नहीं, अमेरिका में नहीं बोल सकते, यूरोप में नहीं बोल सकते, जर्मनी, जापान, चीन में नहीं बोल सकते। आप बोल सकते, आप कभी अरब दुनिया में नहीं बोल सकते। पाकिस्तान में आपकी जो है वो आपने यहां खुले माशी का वेड़ा बनाया हुआ है। बंद करें ऐसी की तैसी इन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान का मजाक बना दिया है। पाकिस्तान के सिपाहियों, पाकिस्तान के अफसर, पाकिस्तान के वो लोग जो जिम्मेदारान हैं, हमारे अदलिया, हमारे दीगर लोग जिनका आपने, अगर अभी बिनिश सलीम के मुतालिक जो है वो आप देखें जाके सोशल मीडिया पे क्या खुराफात और बकवास भरी हुई है। ये कौम का किरदार है, ये कौम की ज़हनियत है, इतनी गिरी हुई। कौन है ये जो लोग इन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं? कौन है जो उनके ऊपर वाह वाह कर रहे हैं? ये वाह वाह का नहीं है, ये हा हा का वक्त है। शर्म करनी चाहिए उन लोगों को जिनको किसी की दूसरे घर की बहू बेटी, किसी के अपने मुहाफिज की जो है इज्जत का ख्याल नहीं है, अपने शोहदा की इज्जत की और तकरीम का ख्याल नहीं है, जो पाकिस्तान के झंडे दफन करते हैं और उसको बकायदा सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं। लानत है उन लोगों के ऊपर जिसने मेरे पाकिस्तान का झंडा दफन किया। क्या मैंने नहीं देखा? क्या मीर साहब ने नहीं देखा? क्या आपने नहीं देखा? क्या हमारे फारूकी साहब ने नहीं देखा? कौन लोग थे? ऐसे नहीं थे। मीडिया की बड़ी इज्जत होती थी, रिस्पेक्ट होती थी। खाली अखबार का कागज भी बिकता था इस मुल्क के अंदर। लोगों का इतना ट्रस्ट था कि जी अखबार की खबर आ गई है। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा शायराई कर रहे हैं, हम उन लोगों को जो है बिल्कुल उनके साथ मजाकरात कर रहे हैं। किस बात के ऊपर मजाकरात कर रहे हैं? जो मेरे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, मजाकरात करना चाहते हैं, जो मेरे शोहदा की बेतौकीरी करते हैं, जो मेरे जीएचक्यू पर हमला करते हैं, उनके साथ कोई मजाकरात नहीं होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी तीनों मेहमानों का ज्वाइन करने। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मंडे को मुलाकात करेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनिश सलीम के साथ ऑन PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त, बार वक्त।